हेलो बैंकर्स, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से जीआईबी सीआईबी प्रेप पे। जहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल डी एंड टुडेज यूनिट इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड इनकम मार्केट विच इज ऑल्सो नोन एज डेट मार्केट, राइट? सो यूनिट नंबर 32, फिक्स्ड इनकम मार्केट, डेट एंड बॉन्ड मार्केट, सो विच इज आर टुडेज यूनिट। तो एक बार जल्दी से आपका कंफर्म कर दीजिए ऑडियो एंड वीडियो इज फाइन, सो वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन, राइट? और कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब कुछ प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, ठीक है? सो मॉड्यूल एएफएम इज ऑलरेडी डन, ठीक है, ऑल द 4 मॉड्यूल। पीपीबी मॉड्यूल सी एंड डी इज डन बाय दिशा मैम, एंड बहुत जल्दी आपको बाकी के मॉड्यूल भी मिल जाएंगे। और दिशा मैम आपको लाइव सेशन ले रही है 9 PM पे, ठीक है? एंड आपका लाइक मॉड्यूल डी जो लास्ट उसमें आपका कंप्लीट किया है मैम ने, ठीक है? सो आज से वो नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपका एएफएम इज ऑलरेडी डन, और जो आई एन आई एफ एस के मॉड्यूल सी एंड डी है वो मैं कवर कर रहा हूँ। सी वी ऑलरेडी डन विद मॉड्यूल सी एंड नाउ वी आर लाइक यूनिट नंबर 32 विच इज मॉड्यूल डी आपका, ठीक है, जिसमें हम लोग हैं, ठीक है? इसके बाद लाइक फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट क्लासेस बेस्ड ऑन आरबीडब्ल्यूएम, राइट? तो आई होप आप लोग रेगुलर बेसिस पे इनको फॉलो कर रहे होंगे, और अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज हैं, कोई भी ऐसे डाउट्स हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी जल्दी से बताइए सभी लोग, ऑडियो वीडियो आपका क्लियर है? आई वी गेट वन अनएक्सपेक्टेड गेट एवरी टाइम, ठीक है? सिट देयर। चलो, सो आपका लेट्स हैव अ लुक अबाउट द कोर्स कंटेंट। सो यूनिट नंबर 32 which include basic introduction to debt market, government securities, bond valuation in theorem, very important part, ठीक है? Auction of government securities, primary dealers, again so many time you will see question based on this. Then we have a retail direct scheme, again very important one, ठीक है? Fixed income money market and derivative association of India, so you can expect one half marks question based on this also, ठीक है? Corporate bonds and intercorporate deposits. So these are the subtopics which are generally part of your module D, unit number 32, fixed income securities, okay, which is all about the bonds. I hope everyone know about the basic things about bonds होता क्या है, या others जो आपका basic areas हैं वो सब लोग समझते हैं, ठीक है? So whenever we talk about bond, it is known as these are the instrument through which companies and government they generally raise funds for long term duration, right? So long term it can be like in case of corporate deposit it is 5 to 10 years, and when we talk about government, so which backed by the sovereignty, so they are generally for 10 years to 15 years on an average. It can be for 30 years also. They are also known as deep discounted bond, but usually you will see लाइक जो एवरेज आपका अगर हम लोग बात करते हैं कॉर्पोरेट के लिए तो 5 to 10 years, एंड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज 10 to 15 years, एंड इट इज one of the largest financial market in the world, the debt market, because economies they generally raise for funds through these particular instrument, right? So basically अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं, सो आपका जो जितने भी आपके डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं they are generally issued for a fixed time duration, and they generally offer a fixed rate of return, and usually that rate of return is known as coupon rate, and which is payable half yearly basis, ठीक है? हर 6 मंथ के अंदर आपका जो पेमेंट्स वहाँ पे होती है इंटरेस्ट के. In case of government, they generally issue these type of instrument on discount basis, that is also known as zero coupon bonds, okay? तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एंड समझते हैं इन सब एरियाज को. So bonds are debt instruments issued by debtor for raising funds. These are issued for a specific period which is known as maturity and carry a fixed rate of interest payable periodically. Bonds are transferable and traded in secondary market nowadays, right? So जिसकी वजह से there will be a change in like their face value is different from their market value, ठीक है? And face value which is stated on the face of the bond itself, right? उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है? So a bond is a form of debt raised by issuer of the bond. Issuer of bond pay interest to the purchaser of using their money. Market value of a bond can be different from the फेस वैल्यू और पार वैल्यू एंड कीप चेंजिंग, ठीक है? सो आज के डेट में अगर हम लोग बात करते हैं
बॉन्ड्स आर गेट ट्रेडेड ऑन दी सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, सो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो जिससे आपका बेस्ड ऑन दी आपका मार्केट फैक्टर्स डिमांड एंड सप्लाई, उनकी वैल्यू में आपका चेंज, मार्केट वैल्यू दैट गेट चेंज ऑन डेली बेसिस, ठीक है। जैसे सपोज दैट देयर इज अ बॉन्ड विच इज लॉन्च बाय XYZ कंपनी, जिसका फेस वैल्यू वाज 1000, ठीक है, 1000 की फेस वैल्यू पे इसको लॉन्च किया गया एंड कूपन रेट वाज सपोज दैट 7% पर एनम विच वाज पेएबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस, राइट। नाउ अब ये जो बॉन्ड है इसका लाइक सपोज दैट मैच्योरिटी वाज 15 इयर्स, 15 साल के लिए बॉन्ड लॉन्च किया गया था। अब इसका मार्केट प्राइस कैन बी डिफर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। जैसे इसका मार्केट प्राइस सपोज दैट मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है आपका प्रीमियम पे 1100 पे, राइट। सो एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी इन्वेस्टर विल गेट दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो फेस वैल्यू इज विच इज स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड्स and the market value which can be differ from the face value. It totally depend on the investors prospect about that particular one, ठीक है। मीनू अ वेरी वेरी गुड इवनिंग सर, मुझे मेरा DVF सर्टिफिकेशन JIB में कन्वर्ट करना है, तो उसमें अपॉइंटमेंट लेटर का PDF मांग रहा है। ओके, तो कुछ इशू आ रहा है आपका उसमें, यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। एक्चुअली मैंने बहुत सारे बैंकर से भी पिछले कुछ दिनों में इस इशू के ऊपर बात किया है, एंड इवन नाउ दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है। जैसे अगर आप IIBF का वेबसाइट पे जाते हैं, सो देर इज एन ऑप्शन, सो फ्रॉम वेयर यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो आपका उसमें वो कन्वर्ट करने का ऑप्शन भी देता है, उसके थ्रू आपका वो आप मेंबरशिप ID मांगेगा, और उसके थ्रू एक काम और कर सकते हैं, यू कैन राइट अ मेल टू IIBF regarding the conversion as well as you can keep CC your HR also, right। तो उसमें DVF का एडमिट कार्ड अपलोड करना, अच्छा ओके, फॉर दैट वन हाउ विल DVF का एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है, अभी भी अवेलेबल होगा अगर आपने रिसेंटली क्लियर किया है। सो आप IIBF की वेबसाइट में लॉग इन कीजिए, जहां पे आते हैं ना डाउनलोड एडमिट कार्ड, वहां पे वो रहते हैं, ठीक है। अगर आपका जो पास्ट में डाउनलोड किया था वो मिस भी हो गया तो भी आपका वहां पे रहता है, अगर वहां पे नहीं है यू कैन राइट अ मेल, अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा किसी के साथ डिस्कशन भी हो रहा था, ठीक है, ठीक है। सो DBF का सर्टिफिकेट इज अगेन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड इवन दैट विल आल्सो कम ऑन योर मेलिंग एड्रेस, आपके मेलिंग एड्रेस पे भी वो आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं आया तो कंसोलिडेटेड को भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें जाइए, वहां से आप एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है मीनू जी। अगर कोई और भी आपका क्वेरी है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड्स हम लोग स्टडी करें, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म होता है दैट इज नोन एज करंट यील्ड, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मीनू यू गॉट योर आंसर फॉर दिस वन, सो व्हाट यू हैव टू डू, आई जस्ट समराइज इट, जस्ट लॉग इन टू IIBF, ओके। तो वहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, डाउनलोड में आपका एडमिट कार्ड भी मिलेगा, ठीक है। सो यू कैन डाउनलोड दैट पर्टिकुलर वन, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है। अगर वो मिस हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं है, देन यू कैन राइट अ मेल टू दी IIBF एंड दे लाइक विद इन 2-3 days दे विल डेफिनेटली रिप्लाई, ऐसा हो रहा है, तो वो जल्दी आपका रिप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। सो करंट यील्ड इज सिंपली आपका, जैसे देर इज अ बॉन्ड, सपोज दैट आपका, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया XYZ कंपनी, दे कम अप विद अ बॉन्ड whose face value is 1000 and coupon rate is suppose that 7% per annum and maturity is suppose that 10 years, 10 साल का इसका maturity है, ठीक है। So now suppose that this bond is listed in secondary market, ठीक है, secondary market में आपका ये trade हो रहा है, ठीक है, and the current market price of this bond is आपका suppose that it is 1100, that means this bond is in premium। premium में क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका एट द टाइम लाइक आफ्टर एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपका ये जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 1000, बिकॉज इट इज द प्रॉमिस विच इज मेड बाय दी बोरोवर्स कि हम आपको 1000 रुपए वापस करेंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर एट द रेट ऑफ 7% पर एनम विच इज पेएबल हाफ एनुअली, ठीक है। इस तरीके से आपका रहेगा। अब यहाँ पे ना करंट यील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, करंट यील्ड का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, सिंपली अगर हम लोग बात करें कि अगर लेट्स से हम 2 साल के एंड में बैठे हैं, ठीक है, दिस इज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है, दूसरे साल में हम लोग हैं, ठीक है। अगर आज लाइक बीइंग एन इन्वेस्टर इफ वी परचेज दिस बॉन्ड टुडे, so what return and if I hold this bond till maturity, so what rate of return we will get from this particular bond, ठीक है। जैसे in this case your return will be less than 7% for sure, ठीक है, क्योंकि आपका मेच्योरिटी भी कितना हो जाएगा 1000। तो अगर प्रीमियम का केस है, जैसे हमारा केस है, इट इज अ केस ऑफ प्रीमियम,
सो योर अगर आपका जो करंट मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज्यादा है, सो योर रिटर्न थ्रू आउट द कमिंग ईयर्स इट विल बी लेस देन 7%। एंड इफ इट इज अ केस ऑफ डिस्काउंट, अगर ये डिस्काउंट पे आपका ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है, तो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा होता है, दैट मीन्स सपोज दैट इसका करंट मार्केट प्राइस है आपका 950 रुपीज, सो योर करंट यील्ड विल बी मोर देन 7%, कुछ इस तरीके से। तो करंट यील्ड का कॉन्सेप्ट फंडा यही बताता है कि अगर हम इस बॉन्ड के अंदर अभी एंटर करते हैं, एंड इफ यू होल्ड दैट बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ रिटर्न वी विल गेट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1180 लग रहा है कन्वर्जन, अच्छा दैट आई अच्छा ओके ओके, अच्छा 1180 रुपीज, दैट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट, बिकॉज उसमें सीक्वेंस में वो दिखा नहीं रहा था, ठीक है, तो मे बी आपका ऐसा हो, ठीक है, दैट दैट यू हैव टू चेक विद IIBF, ठीक है। चलो इतना इतना समझ में आया, ठीक है। सो हाउ कूपन, हाउ वी कैलकुलेट करंट यील्ड, सो इट इज एनुअल कूपन डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, इट इज आल्सो नोन एज एनुअल कूपन पेमेंट। जैसे इस केस में अगर हम लोग बात करें, दो सिनेरियो हमने रखे हुए हैं, ठीक है। सो वन इज केस ऑफ प्रीमियम, अनदर वन इज अ केस ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो सपोज दैट अब इसमें एनुअल कूपन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी योर एनुअल कूपन इन दिस पर्टिकुलर केस, आपका फेस वैल्यू इज 1000, इंटरेस्ट रेट इज, कूपन रेट इज 7%, सो 7% ऑफ 1000 इज इक्वल टू हाउ मच, 70 रुपीज, ठीक है। तो एनुअल कूपन इज 70 रुपीज। अब अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप केस लेते हैं किसका, डिस्काउंट प्रीमियम का, ठीक है, सो प्रीमियम इज हाउ मच, 1100, ठीक है, इंटू 100 आप कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका रिटर्न, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आई विल कैलकुलेट दिस। सो 70 डिवाइड बाय 1100 इज इक्वल इनटू 100 परसेंटेज वाइज अगर हम इसको देखते हैं, सो योर current yield will be, if it is a case of premium, so your current yield will be 6.3636%, right? So this will be your अगर हम कंसीडर करते हैं किसको, सपोज दैट दूसरा सिचुएशन डिस्काउंट का, इन केस ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट में करंट यील्ड कितना हो जाएगा आपका, 70 डिवाइड बाय आपका 950 इंटू 100, सो इट इज 7.36, ठीक है। सो 7.36 37 कर लेते हैं, 38 आपका आ रहा है, 378, so दिस इज द करंट यील्ड, ठीक है। तो ये आपका दो केसेस जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, अंडरस्टूड, समझ में आया सबको, ठीक है। डिस्काउंट और प्रीमियम का केस, एंड साथ ही साथ आपका अगर हम लोग बात करते हैं करंट यील्ड का कॉन्सेप्ट, सो करंट यील्ड इज सिंपली इफ लाइक if we purchase this bond today and if we hold till maturity, so what return will get, ठीक है। तो यहाँ पे if it is in this premium, so your rate of interest will be less than the coupon rate, ये थ्योरम में यही चीजें आएंगी, इसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे इसलिए आएगी, जैसे कितना था 6.3636, क्योंकि एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी जो आपका बोरोवर है इज लाइबल टू पे 1000 ओनली, ठीक है। तो ये 1100 से कम होकर आपका मेच्योरिटी। दूसरी चीज, एक चीज और आपका, कि जितना लंबा टाइम होगा, जैसे 2 साल है आपका, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी आपकी होगी वो ज्यादा होगी, और जैसे वो क्लोज आ जाएगा तो उसके अंदर आपका जो चेंजेस होंगे वो आपके क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। दूसरा अगर ये डिस्काउंट में है तो आपका जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन योर आपका जो दूसरा केस हमारा है, दैट इज व्हाट इज, चलो क्लियर है सबको, तो ध्यान रखें, ठीक है। जैसे करंट यील्ड आपका, अगर हम लोग करंट यील्ड को समझते हैं, ठीक है, सो इट इज, दिस इज द डेफिनेशन। सो जैसे इफ फेस वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज 50 एंड कूपन रेट इज 8% एंड करंट मार्केट प्राइस इज 40, तो इनका जो आपका करंट यील्ड है दैट इज आपका 10। अगेन दिस इज अ केस ऑफ डिस्काउंट आपका, ठीक है। सो YTM इज दैट डिस्काउंट रेट एट विच ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज इक्वल टू द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इटसेल्फ, ठीक है। कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं। नाउ वी हैव 4 थ्योरम विच आर पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, ठीक है। ये थ्योरम्स आप इससे बेहतर समझ सकते हैं इनके साथ, ठीक है, 6 थ्योरम के साथ। पहला मैं यहां से बताता हूं आपको, ठीक है। सो व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न market interest rate is equal to coupon rate, the value of bond is equal to your par value, ठीक है। required rate of return and आपका जैसे 7% and your coupon rate is 7%, तो par value और market price will be same, सिंपल सा, अभी हमने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, ठीक है। दूसरा, when required rate of return is greater than coupon rate, the value of bond is less than par value, ठीक है। जैसे रिक्वायर, जैसे हमने आपका डिस्काउंट का केस समझा था, ठीक है, तो जहां पे
क्या है आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन, मतलब आपका जो फ्यूचर रेट है वो ज्यादा है, डिस्काउंट का केस है, तो आपका जो वैल्यू होगा पार वैल्यू से ज्यादा, मतलब पार वैल्यू आपका द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, मतलब आपका फेस वैल्यू इज लेस देन योर, आपका जो पार वैल्यू है, ठीक है, उससे, ठीक है। When the required rate of return is less than the coupon rate, the value of bond is greater than the par value, ठीक है। तो इस केस में आपका this is the case of premium, ठीक है। इसके अलावा when the required rate of return is greater than coupon rate, the discount on the bond declined as maturity approaches. When the required rate of return is less than the coupon rate, the premium on the bond decline as the maturity approaches, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि in every case it will become what, जैसे अभी ये प्रीमियम है 1100, सो मेच्योरिटी पे 1000 हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्काउंट में है आपका, ये डिस्काउंट में है यहां से यहां पहुंचेगा, दैट्स व्हाई योर रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज 7.37%, और इसमें आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इज आपका 6.3636% आपका। सो दीज आर टू, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर आपका ड्रिवन है आपकी जो बॉन्ड्स की थ्योरम्स है। तो अगर आपने उस चीज को समझ लिया, जैसे इसमें एक और पॉइंट आपका होगा, ठीक है, अ बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। सो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो वाईटीएम घटेगा, और आपका बॉन्ड प्राइस घटेगा तो वाईटीएम आपका बढ़ेगा, सिंपल टर्म्स में अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक। अंडरस्टूड गाइस? There are certain terminology which you need to know about the bonds, like day count convention और या अदर्स आपके जो रहते हैं, ठीक है। और इंडिया में जनरली आपका एक्चुअल 365 चलता है, मोस्ट ऑफ टाइम यूल सी एक्चुअल 365, बट देर आर सम अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। तो पहला कूपन रेट, नाउ एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कूपन रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट, नथिंग एल्स, ठीक है। जैसे हमने बॉन्ड, आपका XYZ कंपनी ने बॉन्ड इश्यू किया था, आपका फेस वैल्यू था 1000, ठीक है। दैट मीन्स borrower is borrowing 1000 rupees from you and making a commitment of, कूपन रेट आपका 7% पर एनम है, तो वो बोल रहा है कि हम आपको 1000 पे 7% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे अगले 10 साल तक के लिए, जो भी मेच्योरिटी उसका है, ठीक है। दिस इज योर कूपन रेट, ठीक है। दूसरा मेच्योरिटी जितने टाइम के लिए, जैसे 10 इयर्स हमारे उसमें था, ठीक है। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, मेच्योरिटी वर्सेस ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन आपके उसमें नहीं है, बट फिर भी थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी एंड ड्यूरेशन। योर ड्यूरेशन कैन बी ड्यूरेशन कैन बी लेस देन इक्वल टू योर मैच्योरिटी। ड्यूरेशन सिंपली क्या होता है कि कितने समय के लिए हम उस बॉन्ड को, जैसे एक बॉन्ड आपका जो सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड है, हमने आज परचेज किया, 100 दिन बाद उसको बेच दिया, सो 100 डेज इज बेसिकली योर आपका ड्यूरेशन, ठीक है। 100 डेज आपका ड्यूरेशन, कि कितने समय के लिए हम उस बॉन्ड के अंदर, आपका जो बाइंग और सेलिंग का टाइम ड्यूरेशन। मैच्योरिटी इज आपका जितने समय के लिए उसने वो बॉन्ड्स को मार्केट में इश्यू किया है, बट योर ड्यूरेशन कैन बी इक्वल टू योर मैच्योरिटी ऑल्सो। जैसे जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उसमें जनरली क्या होगा, योर ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू योर मैच्योरिटी, राइट, क्योंकि उसमें ऐसे कोई रेगुलर इंटरवल पे आपके इंटरेस्ट नहीं मिल रहे होते हैं, दे गेट इशूड ऑन डिस्काउंट बेसिस एंड इवेंचुअली यू विल रिसीव द मनी वैल्यू, आपका जो फाइनल वैल्यू होगा, ठीक है। अगला redemption value. If you talk about redemption value is simple कि like if you purchase a bond and if you hold that particular bonds for a specific period or till maturity, so the amount you will get at the end of redemption, तो जब उसको आप बेचोगे कि जो अमाउंट मिलेगा, ठीक है। So the value which bond holders get on maturity is called redemption value. अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट, मे बी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, that is known as, अच्छा इसके बाद आएगा डे काउंट कन्वेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू विच इज स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ बॉन्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज दैट XYZ आपका दे कम अप विद द बॉन्ड्स 1000 रुपीज, जिसका क्या है फेस वैल्यू, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू इज इट्स अ काइंड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ, ठीक है, जैसे वो कितना यूनिट उसके परचेज कर रहा है। सो सपोज दैट समवन इज बाइंग 1000 यूनिट, so 1000 आपका face value into 1000, so that is the place value for that particular one. So place value is defined as the digit multiplied whether it is placed either by 100 or thousands आपका। जैसे इसका face value is 5, ठीक है। अब इसने 1000 यूनिट आपका परचेज किया, so place value is how much, 5000 आपका, ठीक है। जैसे face value is suppose that 1000 and they purchase 10,000 units, so 1000 into 10,000 आपका, ठीक है। इस तरीके से उसका क्या होगा, that will be counted as place value while we basically place that particular order आपका, ठीक है।
अगला आपका है मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू वी ऑलरेडी डिस्कस दिस वन. सो नाउअडेज बॉन्ड्स गेट ट्रेडेड ऑन सेकेंडरी मार्केट. सो मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो धीरे धीरे आपका उसके हिसाब से चेंज होता रहता है. ठीक है, दैट टोटली डिपेंड ऑन दी डिमांड इन सप्लाई फैक्टर्स विच इज नोन एज मार्केट फैक्टर्स. ठीक है, अगला डे काउंट कन्वेंशन, मैं इसके बारे में बात कर रहा था. ये हमने पिछले भी कहीं पे भी आपका कहीं बुक में आपका लिखा हुआ था. ठीक है, तो होता क्या है डे काउंट कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करते हैं. ठीक है, सो जो इंटरेस्ट आपका, जैसे हमने एक बॉन्ड का एग्जांपल लिया जहां पे कूपन रेट वाज 7% पर एनम. ठीक है, ये आपका कूपन रेट था, दिस इज पर एनम. नाउ दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाफ ईयरली बेसिस, मंथली बेसिस, डे बेसिस और आर्ली बेसिस. बट इंडिया में आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है टिल डे बेसिस आपका ओनली. ठीक है, तो ये 7% को हम लोग 7% पर एनम है, इसको आपका हम लोग हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जो इंटरेस्ट पे आउट होता है जब कंपनीज बॉन्ड रिलीज करते हैं, बॉन्ड लॉन्च करते हैं, तो वहां पे डे काउंट कन्वेंशन आपका मेंशन होता है कि दिस बॉन्ड विल बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पेमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डे काउंट कन्वेंशन एक्चुअल 365. दैट मीन्स अगर आप जितने दिन एक्चुअल डेज के लिए उस बॉन्ड को ओन करोगे, और साल में हम आपका दिन कंसीडर करेंगे 365. समटाइम इट इज आपका जैसे मंथ के डेज विल बी 30, भले आपका फेब्रुवरी है या जो भी है उसको हम हर महीने में हम 30 दिन लेके चलेंगे और साल में 360 दिन. ऐसे थ्योरम्स आपका यहाँ पे जो डेवलप किए गए. ठीक है, सो रीपे इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड बेस्ड ऑन डे काउंट मेथड फॉलोड वेरियसली. Various day count conventions are used in practice in the bond market such as actual मतलब मंथ में जितने एक्चुअल डेज हैं या जितने एक्चुअल डेज के लिए आपने उस बॉन्ड को होल्ड किया है, और साल में एक्चुअल जितने डेज हैं. ठीक है, सो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड एक्चुअल 365 वेयर इवन इन द केस ऑफ लीप ईयर डेज इन द ईयर वुड बी कंसीडर्ड एज 365. ठीक है, 364 हम नहीं करेंगे, वहां पे भी आपका 365 ही आपका काउंट किया जाएगा. सो दैट इज द वन. ठीक है, इसके अलावा एक्चुअल 365 तो आपका वेयर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड अज्यूमिंग देयर आर 360 डेज इन अ ईयर, एंड आपका 360 तो मंथ में आपका 30 डेज एंड ईयर में आपका 360 डेज आपका. ठीक है, तो यूजुअली और मोस्ट ऑफ टाइम यू विल सी दिस डे काउंट कन्वेंशन. ठीक है, जब भी अगर आप कोई बॉन्ड पढ़ेंगे या गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आपका एनालाइज करेंगे देखेंगे, सो यू विल सी देयर इज एक्चुअल आपका डे काउंट कन्वेंशन जो आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके, राइट. चलो, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं. जस्ट अ मिनट. हाँ, क्लियर है. ठीक है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने डाउट भी लिखिएगा. ठीक है, चलो, तो दिस इज अ डे काउंट कन्वेंशन. नाउ प्राइमरी डीलर्स आपका जो कहीं नहीं बॉन्ड मार्केट के अंदर आपका फैसिलिटेट करते हैं ट्रेडिंग्स एंड ऑल. ठीक है, सो प्राइमरी डीलर्स ऑन दी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट are primary dealers. Primary dealers are entities registered with RBI who have the license to purchase and sell government securities. They are entities who buy government securities directly from RBI, aiming to resell them to other buyers. In this way, the primary dealers create a market for government securities. So primary dealers are kind of mediators between government of India and the prospective इन्वेस्टर्स आपका. ठीक है, जो यहाँ पे एंड दे गेट रजिस्टर्ड विद आरबीआई. ठीक है, तो आरबीआई के साथ इनका आपका रजिस्ट्रेशन होता है एज अ प्राइमरी डीलर, और दे हैव टू फुलफिल सर्टेन गाइडलाइंस आल्सो, तो जिनको हम लोग पढ़ेंगे. द प्राइमरी डीलर सिस्टम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1995. ठीक है, 1995 व्हेन दिस concept was get introduced by RBI. The primary dealers thus serve to promote transaction in government securities market. Facilitating arrangement is essential for selling government securities, as government is the single largest borrower in the market, which borrow through the issue of securities like treasury bill, government securities and others. RBI guidelines stipulate that primary dealers would have a minimum turnover ratio, bidding ratio and underwriting ratio, secondary market participation, etc. in order to ensure that they are active in supporting to trade of government securities. So like this is a very simple one जहाँ पे like there are few requirements. तो जहाँ पे like कि अगर government of India is coming with some kind of bond auction, so they are able to conduct that particular auction, and they are able to provide the lenders
to the government of India, right? So eligibility conditions, तो the most important part, ठीक है, प्राइमरी डीलर्स की अगर हम लोग बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो पहला आपका subsidiary of a scheduled commercial bank and all India financial institutions like SIDBI and all subsidiaries or joint ventures set up in India by entities incorporated abroad. Company incorporated under Companies Act 1956 or 2013 and does not fall under A or B आपका इन दोनों के अंदर, ठीक है. The application for primary dealer should register as NBFC, non-banking finance companies, for at least 1 year prior to the submission of its application for primary dealers. ठीक है, तो again this requirement is very important or understandable, I guess. ठीक है, the decision to authorize primary dealer is taken by RBI based on its preparation of market need, suitability of the applicant and likely वैल्यू एडिशन टू द सिस्टम इटसेल्फ. ठीक है, तो ये तीन गाइडलाइंस जो आपके लिखी है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, सो डू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर थिंग. और एग्जामिनेशन में आपका एग्जैक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपका देखने के लिए मिलेंगे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज वन. ठीक है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइमरी डीलर, अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फॉर हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स. ठीक है, so commit participation as a principal in government of India issue through bidding in auctions, provide underwriting services and offer firm buy, sell, bid, ask quote for treasury bills and dated government securities, development of secondary market. So these are some major functions which are generally performed by the primary dealers. Primary dealers can be either bank primary dealers or standalone primary dealers. Bank primary dealers are those where the department of the bank function as a primary dealers, whereas standalone primary dealers are NBFCs. ठीक है, so bank can be like they can also register themselves with RBI as a primary dealers. तो वो एक डिपार्टमेंट की तरह जैसे ट्रेजरी आपका चलता है वैसे इसको भी चला सकते हैं. ठीक है, एंड जो अदर्स आपका अपार्ट फ्रॉम बैंक दे should get registered as a non-banking finance company again under Companies Act 2013, right? Most of the primary dealers are started by the scheduled commercial bank and are registered as NBFCs. ठीक है, तो ज्यादातर आपको जो मिलेंगे वो scheduled commercial bank के ही आपका देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, at present there are 7 standalone primary dealers and 14 बैंक प्राइमरी डीलर्स आर देयर. ठीक है, तो ये थोड़ा सा नंबर्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके, जस्ट अ मिनट. राइट, चलो, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप अपने डाउट भी लिख सकते हैं कमेंट्स के थ्रू. ठीक है, सो नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स. आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर कोई ऐसा डाउट है किसी में तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. ठीक है, हालांकि अगर आप अपने कोर्स करिकुलम को देखते हैं, बुक को खोल के देखेंगे, वहाँ पे जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स आपके हैं उनको ज़्यादा डिटेल में आपका नहीं मतलब एलोबरेट किया गया. ठीक है, सो लेट्स हैव अ क्विक लुक. जल्दी से हम इनको थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है, आई गिव यू डेफिनेशन ऑल्सो जिससे आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है, सो पहला आपका फिक्स रेट बॉन्ड्स, मतलब सिंपल सा आपका जहाँ पे कंपनीज के द्वारा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका या कूपन रेट आपका कमिट किया जा रहा है थ्रू आउट द मेच्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड. फ्लोटिंग, दे आर लिंक विद सम इंडाइसेस. ठीक है, ये जनरली किसी इंडेक्स के साथ लिंक होते हैं एंड जो आपका इंडेक्स के अंदर चेंज आपका होगा वो इनके प्राइसेस में भी रिफ्लेक्शन करेगा, इनके कूपन रेट में भी रिफ्लेक्ट होगा. यूजुअली इट इज बेस्ड ऑन मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे. ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? यूजुअली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बॉन्ड इशू करती है दे ऑल आर जीरो कूपन बॉन्ड्स. जीरो कूपन बॉन्ड्स दे गेट इशूड ऑन डिस्काउंट बेसिस. जैसे सपोज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम अप विद some borrowing from the market. उन्होंने बॉन्ड इशू किया एट अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड दे गेट इशूड ऑन डिस्काउंट ऑफ 500 एंड सपोज दैट मेच्योरिटी इज 12 years. ठीक है, 10-12 साल के लिए बॉन्ड आपका इशू किया गया. सो बीइंग एन इन्वेस्टर इनिशियली वी नीड टू पे हाउ मच? आपका 800. ठीक है, हम 500, तो हमें इनिशियली आपका 500 रुपए पे करना पड़ेगा. एंड एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी व्हाट वी गेट फेस वैल्यू इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो हमें ये आपका 1000 मिलेगा. अब इनको बोलेगा जीरो कूपन, मतलब कूपन इज इंटरेस्ट रेट. ठीक है, जहां पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है, तो इसमें कोई रिटर्न नहीं है. दैट इज
मतलब वो गलत हो जाएगा। और अगर किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो व्हाई विल इन्वेस्ट इन दोस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज, राइट? So zero coupon bonds they get issued on discount and at the time of maturity we get the face value. अब गवर्नमेंट हमेशा यही इसी तरीके से आपका फंड्स को मार्केट से रेज करी होती है। इवन द ट्रेजरी बिल्स आल्सो दे गेट इशूड ऑन द डिस्काउंट बेसिस, राइट? अगला जो है आपका दैट इज इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड, ठीक है? अभी आपका ILBs इनको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स। 2011-12 के अराउंड इनको आपका लॉन्च किया गया बिकॉज 10-11 के अंदर आपका इंडिया में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन था, जो 10.40% का जो टच किया था अपर साइड आपका, ठीक है? सो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड्स आर बेसिकली दीज आर लिंक विद एन इंडाइसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल, ठीक है? देखो कैसे काम करता है। I hope everybody is aware about the concept of inflation, how it worked. Inflation means increase in prices. So inflation means increase in prices of general goods and services, right? अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, एज इन्फ्लेशन इंक्रीज एवरी रुपी वी ओन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक जैसे ये मार्कर आपका पहले 10 रुपए में मिलता था, अब ये 15 में मिल रहा है। सो दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज डिफाइंड एज इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे सपोज दैट 20 रुपए में आपका, ठीक है, तो पहले आपका 20 रुपए का परचेजिंग पावर वाज 2 मार्कर, नाउ इट कैन बाय ओनली 1 मार्कर। रीजन बीइंग आपका क्या हुआ, इन्फ्लेशन आपका बढ़ा। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा जिस भी इकोनॉमी के अंदर, उस इकोनॉमी की जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो क्या होगी, कम होगी। नाउ यू कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, रियल इनकम का, ठीक है? सो रियल इनकम, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वर्ड। रियल इनकम इज आपका क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं इसको, जैसे सपोज दैट हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 7%, सो आफ्टर 1 ईयर वी विल गेट 107 रुपीज। दिस 107 रुपीज इज योर नॉमिनल इनकम। ये आपकी क्या है, नॉमिनल इनकम। जो 7 रुपए आपने कमाया है दैट इज नॉमिनल ओनली, राइट? सो नॉमिनल क्यों, क्योंकि पूरे साल भर में इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड इन्फ्लेशन ऑल्सो वेंट अप, ठीक है? तो आप देखो क्या होगा, हाउ वी कैलकुलेट रियल इनकम, इट इज इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन, राइट? इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन, तो आपका जो होगा दैट इज योर रियल इनकम। सपोज दैट एवरेज इन्फ्लेशन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड वाज 5%, सो योर रियल इनकम इन दिस पर्टिकुलर केस इज हाउ मच, आपका 7 माइनस 5। एक्चुअली हमने कितना पैसा अर्न किया, 2 रुपए आपका, ठीक है? सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इनकम। आपका हमने एक्चुअल इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से सिर्फ 2 रुपए कमाया, देखने में आपका 7 है। तो रियल इनकम इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम। अब ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, सो आपका प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम वाज कि जो इंटरेस्ट रेट आपका, जैसे सपोज दैट हम किसी कंपनी ने एक बॉन्ड लॉन्च किया, ठीक है? आपका फेस वैल्यू था 1000 एंड कूपन रेट वाज सपोज दैट 8%, ठीक है? एंड दिस बॉन्ड वाज फॉर 15 ईयर, मैच्योरिटी इसकी थी आपका 15 साल, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड लॉन्च किया सपोज दैट, या आपका किसी कॉर्पोरेट हाउस ने। अब द प्रॉब्लम वाज एवरेज इन्फ्लेशन ऑफ ड्यूरिंग दीज 15 ईयर्स वाज, ठीक है? सपोज दैट इन 15 साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन था, ठीक है, मैच्योरिटी पे क्या पता चला, इट वाज सपोज दैट 10%, ठीक है? एवरेज इन्फ्लेशन फॉर दीज 15 ईयर्स was 10%। अब ऐसा हुआ, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी रियल इनकम नेगेटिव में चलेगी। 8% का आपका इंटरेस्ट है एंड योर इन्फ्लेशन इज 10%, सो इट इज -2। तो ऐसे में हमने 15 साल के लिए पैसा डिपॉजिट किया, किसी को दिया, इन्वेस्ट किया, एंड आफ्टर 15 ईयर्स वी गेट नथिंग, ठीक है? हमारा पैसा क्या होगा, उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या होगी आपका, और कम होगी, ठीक है? मतलब 100 रुपए दिए और हमें मिला 98 रुपीज, सिंपल टर्म्स में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सो नाउ द प्रॉब्लम, अब ऐसी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर आपका बॉन्ड मार्केट से हटके किसी और मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे कम अप विद इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड। उन्होंने क्या बोला, दे कम अप विद अ फॉर्मूला मैक्स और जीरो, ठीक है? उन्होंने बोला कि आपका इन्फ्लेशन मार्केट में कितना भी हो, ठीक है? जैसे ट्रेंच, अलग अलग ट्रेंच में लॉन्च किया गया, सपोज दैट इट इज लिंक्ड विद सीपीआई प्लस 2.75%, जैसे सपोज दैट पहला ट्रेंच है। सो नाउ इन दिस केस अगर इन्फ्लेशन आपका 10% होता है, सो व्हाट विल बी योर रिटर्न, सपोज दैट सीपीआई इज एट 10% ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो 10.275%। सो अब किसी भी सर्कमटेंसेस में आपका जो रियल इनकम है दैट गेट प्रोटेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है? अगर इन्फ्लेशन ना होकर डिफ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन आपका खत्म हो गया, -5% का डिफ्लेशन है, तो दिस फॉर्मूला इज वर्क ऑन दिस बेसिस, ठीक है? मैक्स आपका
और जीरो, ठीक है, जीरो से निगेटिव को वैल्यू को हम नहीं लेंगे। तो ऐसे ट्रेंच आपका जो लॉन्च किए गए दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड आपका। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी का? थोड़ा सा हेलो हाय कुछ बोलो, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलो अगला हमारे पास है परपेचुअल बॉन्ड्स। आई होप यू हर्ड अबाउट दिस परपेचुअल बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स विदाउट मेच्योरिटी, ठीक है, बॉन्ड्स विद नो मेच्योरिटी, राइट। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें कोई स्पेसिफाइड मेच्योरिटी नहीं होती है, दे लुक लाइक इक्विटी, ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, कोई मेच्योरिटी नहीं होता, कंपनी तक रहते हैं। अब इक्विटी और इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, इक्विटी में कोई आपका फिक्स रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न इज टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस या मार्केट फैक्टर्स, यहाँ पे आपका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न होगा, ठीक है। दूसरा सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स मींस सेकंड, इट इज अ पार्ट, सबऑर्डिनेटेड डेट बोलते हैं ना, दैट इज मतलब सेकेंडरी डेट। कल के डेट में अगर कंपनी लिक्विडेशन फेस करती है, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, सो फर्स्ट वी विल रीपे द प्राइमरी डेट विच इंक्लूड आपका जैसे आपका सैलरी, रेंट, बैंक लोन्स या अदर्स जो प्राइमरी डेट है वो सब। उसके बाद जब पैसा बचेगा तब इनके पास, दैट मींस दे आर रिस्कियर इन नेचर, तो इनमें रिटर्न भी थोड़ा हायर साइड पे होगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच इज इशूड बाय कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेज आपका सिंपल सा है, ठीक है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गवर्नमेंट जनरली इसको लेके आते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, जहां पे टैक्स बेनिफिट्स आपके दिए जाते हैं अलग अलग सीक्वेंस में। जैसे क्या होता है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब प्रिंसिपल भी, इंटरेस्ट भी, और उस इंटरेस्ट का री इन्वेस्टमेंट भी ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। पहला केस ये हो सकता है जो बहुत कम होता है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है आपका जैसे टैक्सेबल एग्जेम्प्ट, आपका एग्जेम्प्ट या फिर टैक्सेबल एग्जेम्प्ट टैक्सेबल, ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पे कोई टैक्स नहीं लेंगे। एक केस में आपका कि अगर आप उसको री इन्वेस्ट करोगे तो भी टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा आपका जब उसको री इन्वेस्ट करोगे तब टैक्स लगेगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स आपका सिंपल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, 10 तो ये आपकी जो इशूइंग अथॉरिटीज है उनके हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन लिंक बॉन्ड are securities designed to help protect investor from inflation. Inflation linked bonds are indexed to inflation so that the principal and interest payments rise and fall with the rate of inflation itself, right? Perpetual bonds, bonds with no maturity date, याद रख लें। जीरो कूपन बॉन्ड्स मैंने आपको बताया, दे गेट इशूड ऑन डिस्काउंट बेसिस, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा इशू करती है, ठीक है। सो कूपन सॉरी, a zero coupon bond is a bond face value is repaid at the time of maturity. They have no this and they get issued on discount basis, right? Subordinated, so it is subordinated debt, so they get secondary preference at the time of repayments. Optionality in bonds आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, और आई गेस इस बार ये पूछा गया था, ठीक है, जो जून जुलाई का पेपर आपका हुआ था, मई जून वाला, उसमें एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स। तो अब हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, वन इज कॉल ऑप्शन, अनदर वन इज पुट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शंस डेरिवेटिव वाले में अगर आप जाते हैं, ठीक है, सेम उसी के बेस पे आपका बॉन्ड की ऑप्शनलिटी भी बनाई गई है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, two type of bond option, one is callable bonds, another one is puttable bonds, ठीक है। So callable bonds give right to, it give right to the issuer, ठीक है, to the issuer, ठीक है, जो उस बॉन्ड का इश्यूअर है उसको राइट देता है टू रिडीम देम और टू बायबैक, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो वो क्या कर सकता है, उन बॉन्ड्स को बायबैक कर सकता है आफ्टर स्टेटेड मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। दूसरा पुटेबल बॉन्ड्स गिव राइट टू, इट गिव राइट टू इन्वेस्टर्स आपका, ठीक है, जिस बॉन्ड के आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको, ठीक है, टू सेल बैक, ठीक है, इनके पास राइट क्या होता है आपका, सेल बैक करने का। मतलब क्या हुआ इस चीज का, जैसे सपोज दैट देयर इज अ कंपनी हु कम अप विद द बॉन्ड्स, XYZ ने आपका बॉन्ड लॉन्च किया एंड मैच्योरिटी वाज 15 इयर्स एंड दिस ऑप्शनलिटी इज आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये 5 साल के बाद है, ठीक है। If it is callable bonds, that means XYZ can redeem these particular bond from market after 5 years, मतलब 5 साल के बाद आप बॉन्ड्स को वापस खरीद के इन्वेस्टर का पैसा वापस कर सकती है, ठीक है। इट इज द राइट ऑफ कंपनी और इश्यूअर बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। सिमिलरली हियर आल्सो पुट, अगर ये पुटेबल बॉन्ड है एंड ऑप्शन इज अवेलेबल आफ्टर 5 इयर्स, इन्वेस्टर्स के पास राइट है, वो आपका फोर्स कर सकते हैं इश्यूअर को कि भैया आप हमारा पैसा वापस दे दो, अब हमें आपको कहीं और जगह इन्वेस्ट करना है या लिक्विडिटी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इट इज एन ऑप्शन बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो इस तरीके से जो आपके ये दोनों काम करते हैं। तो कॉलेबल ऑप्शन, प्लीज एक चीज ध्यान रखें, आप इसका क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। कॉलेबल बॉन्ड्स विच गिव राइट टू इश्यूअर एंड पुटेबल बॉन्ड्स विच गिव राइट टू इन्वेस्टर्स। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन। आपका क्वेश्चन इसी के साथ शुरू होगा, फिर वो पूछेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, तो उस तरीके से जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
So a callable bond is a type of bond that allow the issuer of the bond to retain the privilege of redeeming the bond at some point before the maturity, which is stated in the bond. Putable bonds is a type of bond that provide the holder of bond, which is investor, the right but not obligation to force the issuer to redeem the bond before the maturity date. Understood? Clear है सबको? कोई डाउट है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला चीज जहां पे थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। सो फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMMDA, हाफ मार्क्स क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। मतलब हाईली एक्सपेक्टेड एरिया आपका है और एक ही चार्ट में आपके पास सब कुछ है। सो लेट्स गो थ्रू दिस वन, ठीक है। So FIMMDA is a self-regulatory organization associated with the fixed income and derivatives market in India. It is an association of commercial bank, financial institution and primary dealers, and is a voluntary self-regulating institution for bond, money and derivative market. ठीक है? So the role of FIMMDA is the function as a principal interface with the regulator on various issues. जैसे मतलब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो, जैसे फॉर आवर बैंक वी हैव IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन, या फॉरेक्स में आपका फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। वैसे ही आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स कौन है आपका, जैसे बैंक हैं या प्राइमरी डीलर्स हैं, बैंकों के प्राइमरी डीलर्स हैं, या NBFC वाले प्राइमरी डीलर्स हैं, या डेरिवेटिव के जो आपके हैं, ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो दे विल यूज दिस, मतलब एक उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो उस एरिया में ट्रेनिंग डेवलपमेंट इश्यूज को स्टडी करना और इनके प्रॉब्लम्स, कोई भी आपका प्रॉब्लम्स है, कोई भी डिस्प्यूट्स है, उनको रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाने का काम करते हैं। दैट जनरली वर्क एज अ मीडिएटर, राइट। So the function of principal interface with the regulators on various issues that impact on functioning of these market, to undertake development activities such as introduction of benchmark rate and new derivative instruments, to provide training and development support to dealers and support personnel at member institutions, to adopt and develop international standard practices and a code of conduct in above field of the activity, to diversify standardized best market practices, to function as an arbitrator for dispute, arbitrator for dispute if any between member institutions, to develop standard set of documentations, to assume any other relevant role facilitating smooth and orderly functioning of said market. ठीक है, तो अगेन देखो बहुत बेसिक है, वेरी इजी, वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड एज वेल, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस वन एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे थोड़ा सा एक बार अगर आप इसको रिवाइज करके जाओगे तो ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर बैंक वी हैव IBA, फॉर फॉरेक्स मार्केट वी हैव फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सिमिलरली फॉर money market, debt market or derivatives we have FIMMDA, that is Fixed Income Money Market and Derivative Association. Understood guys? Any question, any query based on this? इसके अलावा RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आई होप यू नो अबाउट दिस टीम। तो RBI ने जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं आपका डेट मार्केट के अंदर, खासकर गिल्टेड सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म आपका बनाया जहां पे बीइंग अ रिटेलर वी कैन डायरेक्टली परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम RBI। तो जो प्राइमरी डीलर्स हैं उनको बीच में से हटा दिया, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डीपन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड एनेबल रिटेल individual investors to participate in the process of nation building, building the given theme axis of government securities market, RBI launched retail director scheme on 12th of November 2021. The silent features are पहला securities eligible. So RDS retail direct scheme will would enable a retail investor to buy and sell following government securities. कौन सा? Government of India treasury bills, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आपका, ठीक है। पर ये इंस्ट्रूमेंट जिनमें हम आपका बीइंग अ रिटेलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसके थ्रू? आपका RDS के थ्रू, पहला चीज। दूसरा स्कोप ऑफ स्कीम, ठीक है। सो RBI रिटेल डायरेक्ट इज एन कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम विच प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटीज टू रिटेलर्स। पहला, ओपन एंड मेंटेन अ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट
RDZ अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके थ्रू हम इसमें आपका जो बाय सेल करेंगे, ट्रेड करेंगे बेसिकली। एक्सेस टू प्राइमरी इंश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सॉरी, एक्सेस टू प्राइमरी इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तीसरा आपका एक्सेस टू एनडीएस ओएम आपका, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आपके होते हैं उसमें भी एक्सेस आपका जो दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले का सीक्वेंस क्या था, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दे हैव प्राइमरी डीलर्स, उनके बाद आपका ये आगे सेल आउट हो रहे थे, बट आफ्टर दिस वी हैव डायरेक्ट एक्सेस। अब इसका मतलब ये नहीं प्राइमरी डीलर का रोल खत्म हो गया, दे डू हैव देयर रोल, ठीक है। जैसे आपका कॉर्पोरेट डेट्स या अदर्स, वो सब उन्हीं के द्वारा अरेंज होता है अभी भी, ठीक है। So eligibility of investors आपका, ठीक है, retail investor as defined under the scheme can register under scheme and maintain a RDZ account if they have rupee saving bank account, simple सा, PAN number issued by income tax department, officially valid document for KYC purpose where we have 6 documents, valid email ID and registered mobile numbers, ठीक है। These are the prerequisite to open this RDZ account, ठीक है। Non-resident retail investors eligible to invest in government securities under FEMA 1999 are eligible under this scheme. RDZ account can be opened singly or jointly with another retail investors who meet the eligibility criteria also, right? So these are the one. So again guys, very basic and very important one, ठीक है। ये जो पिछले 2-3 स्लाइड गए हैं ना, like these are kind of कि 100%, मतलब आप इनका रेशियो मान के चलो कि 10 में से 8 बार ये पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट से, गलटेस्ट सिक्योरिटीज की जब या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम लोग जब बात करते हैं, ठीक है। अगला रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपका, इन्वेस्टर कैन रजिस्टर ऑन द ऑनलाइन पोर्टल बाय फाइलिंग अप द ऑनलाइन फॉर्म and use OTP received on the registered mobile number and email and authenticate and submit the form. Instructions issued under RBI KYC Direction 16 updated on time to time basis will adhere to during the onboarding of the investors. Upon successful registration, retail direct gilt account will be open and detail for accessing the online portal will be conveyed through the SMS or email account. Say it's completely up online. RDZ account shall be available for primary market participation as well as सेकेंडरी मार्केट आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जगह आपको इसमें एक्सेस मिलेगा। तो दिस इज द वन। प्राइमरी मार्केट पार्टिसिपेशन में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मतलब जहां पे लिस्टिंग होता है बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जैसे हमने पिछले कैपिटल मार्केट में पढ़ा था वैसे ही, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज विल बी as per the non-compliance scheme for participation in primary auction of government securities and potential requirement of SDB issuance. इसके अलावा only one bid per security is permitted. Then payment of to the aggregate or receiving office can be made through either of the following ways: using net banking UPI, using UPI facility where the fund is linked with the bank accounts. A refund, if any, will be credited investor bank account as per the timeline specified by the aggregator, right? Allotted security will be issued to the investor by credit to their RDZ account on the day of the settlement, ठीक है। तो जो भी अगर आपको सिक्योरिटीज मिलती है उस ऑक्शन में, so you'll receive them that particular one. Secondary market, registered investor can access the secondary market and transaction linked to their online platform buy sell government securities NDS OM, ठीक है। आपका जो सिंपल सा मतलब जो ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज है उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपका क्या होते हैं, दीज आर इशूड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस। तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज को देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रबिस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट आर it diffuse stress on bank by diversifying credit risk across the various investors, to supply long-term investment product for long-term investors, to reduce funding cost for corporate and other by eliminating agency and intermediations cost, to ensure that capital is allocated more efficiently among various enterprises, right? So companies, they can also raise funds through the debt market. So they generally issue corporate bonds, जैसे हमने पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपका लिए थे, एंड इवन इट कैन बी इंटर कॉर्पोरेट ऑल्सो, मतलब वन कॉर्पोरेट टू अनदर वन, ठीक है। जैसे रिलायंस और आपका सपोज दैट एनी XYZ ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी और आपका, ठीक है।
So there are some questions आपका last part of this particular one. That what will be the correct nomenclatures of the central government security issued in 2018. Okay, 2018, 10 years and आपका 7.85%. तो 7.85% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2028. ठीक है, तो जितना भी होगा ना जब ये इशू किया गया प्लस जितने साल का उसका मेच्योरिटी है, तो 28 प्लस सॉरी 18 प्लस 10 इज 28. तो इट शुड बी आपका 7 सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन 28. ठीक है, सो 28. हाँ, सो बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है, इन विच टाइप ऑफ ऑक्शन इज द phenomena of winners course observed. ठीक है, winners course observed, multiple price auction, uniform English auction, Dutch auctions. Okay, you have to check this one. हाँ, ठीक है. अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड थ्योरम इज नॉट करेक्ट. ठीक है, बॉन्ड थ्योरम हमने पढ़ी थी. ठीक है, द प्राइस ऑफ बॉन्ड इनवर्सली रिलेटेड टू दिस इज ट्रू. Bond the increase in the price of bond when the interest rate goes down, this is also correct. Longer the term maturity of bond, higher the maturity sensitivity आपका, this is wrong. ठीक है, ये आपका गलत है. So this will be a correct answer. Wrong ही पूछा ना आपको. हाँ, not correct. Between two bonds, same maturity, different coupon. The bond with lower coupon will experience more price sensitivity than the higher coupon. ठीक है. In which year primary dealer was introduced? कौन से हुए? 1995 में किए गए थे. ठीक है, by RBI. Which of the following securities are not eligible in the RBI retail direct scheme? ठीक है, तो कौन नहीं होगा? ट्रेजरी बिल होता है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सोवेरियन है. इट इज अ मतलब जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज में ट्रेड होता है. सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस वन. सो सी विल बी करेक्ट आंसर for this particular question. Understood? So according to a bond price yield relationship, what happened to the prices of a bond if the market interest rate increase? ठीक है, so what will be your right answer for this one? We have already discussed this particular one in our like AFM subject. It is something around the bond valuation theorems आपका. ठीक है, so if market interest rate increase, so your like the relationship with the prices will like we have inverse, these are basically inversely related. ठीक है, तो the prices आपका क्या होगा? The price will decrease in this particular situation. Alright, तो अब यहां से शुरुआत करते हैं अपना आज का डिस्कशन. ठीक है, so bond theorem 1 state that bond prices and interest rate are inversely related. When interest rate increase, the present value of future cash flow decreases, leading to a fall in bond prices. I hope you guys remember the concept of that the current yield and all. ठीक है, so जो हमने काफी डिस्कस किया था. ठीक है, let's have a discussion guys. ठीक है, so theorems for bond value, very important. Okay, so you can expect one question based on this particular one at least for 1 mark. Sometime it is for 2 marks as well. Okay, so when the required rate of return, or which is generally known as market interest rate, which we generally calculate through the current yield. Current yield generally क्या होता है? If we purchase that bond today and if we hold till maturity, the return we are going to receive from that particular security. ठीक है, so is equal to coupon rate. The value of the bond is equal to its par value, or which is also known as face value, right? So that means nowadays bonds, they get traded in secondary market. So if a bond face value is 1000 and if they are equal, so their market value or the current market price will be आपका 1000 only, right? So that is the one. When the required rate of return is greater than the coupon rate, okay, so greater than the coupon rate, the value of bond is less than its par value. Okay, so the required rate of return is greater, that means the bond is generally get trading in आपका premium. ठीक है, so at the end of the maturity that कहीं ना कहीं जो आपका जो बेसिकली इन्वेस्टर विल गेट फेस वैल्यू ओनली. ठीक है, सो इट विल कम डाउन व्हेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द coupon rate, the bond is greater than its par value. When required rate of return is greater than its coupon rate, it is get traded on discount. When required rate of return is less than coupon rate,
it is on premium. ठीक है. A bond price is inversely related to its yield to maturity, right? So inversely related means if prices will increase, YTM will decrease, or if prices will decrease, YTM will increase. ठीक है. So this is the outcome of this particular one. ठीक है. So there is a case of discount and premium. I just want your attention toward this particular one because this is a very important part. बहुत बार examination में पूछा जाता है. ठीक है. So when the required rate of return greater than the coupon rate, ठीक है. So required rate of return is greater than coupon rate means your current yield is greater than your coupon rate, interest rate आपका. ठीक है. Let's say there is a company who come up with a bonds, ठीक है, जिसका face value is 1000, ठीक है, and the coupon rate is, let's say it is 10%, ठीक है, and so the when the required rate of return is greater than this, let's say it is the current yield is supposed that 12%, ठीक है, so it is on discount because it will come to 1000 at the time of maturity. ठीक है. When the required rate of return is less than coupon rate, ठीक है, let's say if coupon rate is 10% and required rate of return is 8%, ठीक है, it is on premium, so that is the logic behind this particular one. ठीक है. तो प्लीज ध्यान रखिएगा इसको. ठीक है. ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ठीक है. So a 5-year bond with face value of 10,000 has a current yield 8%, ठीक है, and if the bond coupon rate is 9%, so coupon rate is greater than your current yield, that means it is in premium. ठीक है. ये आपका किस में ट्रेड हो रहा है? It is in premium. ठीक है. So what can we infer from this particular one? The bond is traded on discount. आपका हाँ, so option 2 और option B only will be right answer for this particular question. Understood guys? ठीक है. तो ऐसे छोटे छोटे चीजें आपका जो थ्योरम के अराउंड है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस. ठीक है. सो इफ कूप, हाउ वी कैलकुलेट करंट यील्ड? सो टू कैलकुलेट करंट यील्ड द फॉर्मूला इज कूपन पेमेंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है, और इनटू 100, सो यू विल गेट इन परसेंटेज. और इसके ऊपर मैंने आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराया था आपके AFM सब्जेक्ट के अंदर आपका. ठीक है. सो जैसे यहाँ पे आपका लिखा है, इफ करंट यील्ड इज लेस देन कूपन रेट, इट मींस इट इज it means the market price is higher than the face value. ठीक है. Let's say मतलब इसका market price is like, let's say आपका face value is in this particular case 1000 and market price, current market price is suppose that it is 1200. So इसका ये मतलब है it is on आपका premium. ठीक है. Premium में क्यों है? Because at the time of maturity, let's say the remaining years are 5 years to mature this bond. So at the end of 5 years, this 1200 will become 1000 only because a borrower will pay 1000 on that particular instrument. दूसरी तरफ आपका this is the case of आपका premium. Discount का केस क्या होगा? Face value was 1000, let's say, and current market price is suppose that आपका 900. That means this bond is on discount. ये आपका डिस्काउंट में है. क्यों डिस्काउंट में है आपका? देखो आप किस तरीके से आप इसको इन्फर करेंगे. ठीक है. Because if you'll calculate current yield, so what will be the current yield? Let's say the coupon rate is 10%. Coupon rate is 10%, and the so current yield. What will be current yield? Current yield क्या होगा आपका? So it is how we calculate current yield. Current yield is equal to annual coupon, which is 10% of 1000, that is 100. So 100 divided by 900 into 100. ठीक है. So this is your equation. आपका जो भी आउटकम होगा, दैट आउटकम विल बी लेस देन दिस 10%. इस केस में आपका क्या होगा? मोर देन आपका दिस 10%, इफ आपका कूपन रेट इज 10%. ठीक है. तो इस तरीके से इसमें आपका करंट यील्ड क्या आएगा? ज्यादा आएगा. ठीक है. इसमें आपका करंट यील्ड क्या होगा? आपका कम आएगा, सॉरी, एंड इसमें आपका करंट यील्ड ज्यादा आएगा. कैसे ज्यादा आएगा? एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. सो 100 डिवाइड बाय आपका 900 इनटू 100, so it is आपका 11.11. ठीक है, परसेंटेज. अब इस केस में अगर आप देखते हैं, सपोज दैट दिस इज द आपका कूपन रेट. ठीक है. सो 10% ऑफ 1000, दैट इज 100 डिवाइड बाय 1200. ठीक है. सो इनटू 100 अगर आप करते हैं, सो इट इज 8.33. ठीक है. सो दिस इज, तो करंट यील्ड इन दिस पर्टिकुलर केस इज, करंट यील्ड कितना है आपका? 8.33, बिकॉज इट इज इन आपका प्रीमियम. और ये केस आपका डिस्काउंट का केस है. ठीक है. दिस इज अ केस ऑफ डिस्काउंट. ठीक है. अब यहाँ पे ये आपका करंट यील्ड इज
करंट यील्ड इज लेस देन कूपन रेट. करंट यील्ड कितना है आपका 8.33 एंड आपका एनुअल कूपन इज हाउ मच 10%. ठीक है. इन केस ऑफ डिस्काउंट के केस में करंट यील्ड इज आपका 11.11 विच इज ग्रेटर देन दी 10. ठीक है. तो ये जो लॉजिक है ना, यू हैव टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियरली. Still, if you have some confusion, please do mention into the comment section. Now, few questions we will quickly practice. A bond with 10% coupon rate and face value of 5,000 currently priced at 5,500. So, what the bond current yield? तो current yield निकल के आ जाएगा सबका. ठीक है, तो current yield क्या है आपका? Current yield is equal to annual coupon. ठीक है, so how we calculate this? Annual coupon divide by your current market price into 100. ठीक है, this is the formula. ठीक है, so now if you calculate this particular one, it is आपका कितना है 10% and face value is this. तो 5 कितना हो जाएगा आपका 10% of 5,000 is 500. ठीक है, so 500 डिवाइड बाय कितना आपका 5,500. ठीक है, so 500 डिवाइड बाय 55 into 100 कितना होता है इक्वल टू. ठीक है, so 500 डिवाइड बाय 5,500 into 100 is equal to 9.09. ठीक है, सो 9.09 या 9.1 हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, सो 9.10 will be right answer for this one if you round off the figure, right? So अब अगर आप मेरे को अगर सवाल ये होता है, अब देखो यहाँ पे क्या है, करंट यील्ड इज आपका लेस देन योर कूपन रेट. दैट मीन्स आपका करंट यील्ड कितना है आपका 9.1 एंड आपका करंट कूपन रेट इज 10%. ठीक है, सो दिस इज द वन. सो दिस मीन्स दिस बॉन्ड इज गेट ट्रेडेड ऑन आपका किस चीज में है, ये आपका किस चीज में ट्रेड हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज ट्रेडेड ऑन प्रीमियम. ठीक है, ये हमारा केस किस चीज का है, दिस इज अ केस ऑफ प्रीमियम. ठीक है, सो दिस इज अ केस ऑफ प्रीमियम. तो प्रीमियम में क्यों है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी इन्वेस्टर और द बोरोवर, बेसिकली बोरोवर will repay only face value. ठीक है, which is also known as par value, which is stated on the face of the bond. ठीक है, तो कितना पे करेगा वो आपका 5,000 ही पे करेगा. अभी ये कितना है 55 प्रीमियम में है. डिस्काउंट में कब होता है, जब आपकी इसकी वैल्यू जो करंट मार्केट प्राइस है अगर ये 5,000 से नीचे होता तो वो आपका डिस्काउंट में होता. डिस्काउंट में होने का मतलब योर करंट यील्ड विल बी हायर देन दी योर कूपन रेट. ठीक है, तो इसको आपका करंट यील्ड क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि इट इज कि इफ आई purchase this bond today and if I hold till maturity, what rate of return I'm getting from this particular one, required rate of return. So I'll get कितना 9.10%. So that is the logic behind this thing. ठीक है, understood. एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ये देखो, an investor purchase 1,000 bond at आपका 1,100. ठीक है, so this is आपका face value. ठीक है, and this is current market price. ठीक है, with a coupon rate of 9%. If the bond price drop to 950 rupees in the market, ठीक है, so we have two situation here. आपको दो बार current yield निकालना पड़ेगा. One is आपका for situation one, what is your current yield आपका. ठीक है, so 9% means 90. So 90 divide by आपका 1,100. ठीक है, so जहां पे इसने परचेज किया था. ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज इट वाज 90 डिवाइड बाय आपका 1,100. ठीक है, सो इट इज अगर हम करते हैं इनटू 100, सो इट इज 8 पॉइंट, इन फर्स्ट केस इनटू 100 कर लेना. ठीक है, 8.18. ठीक है, सो दिस वाज द current yield for first situation when he purchased that bond. ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम सिचुएशन 2 इज लाइक जहां पे करंट यील्ड बिकम कितना, करंट यील्ड तो सेम रहेगा, सॉरी आपका एनुअल कूपन वाज हाउ मच 90 डिवाइड बाय नाउ द मार्केट प्राइस केम डाउन कितना 950. तो इसका क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है. ठीक है, 950 आपका. ठीक है, इनटू 100 अगर आप करते हैं, सो वी विल रीच टू योर कंक्लूजन. सो 90 डिवाइड बाय 950 into 100, so it is 9.74. ठीक है, 9.47 सॉरी. ठीक है, so 9.47%. ठीक है, so this is the interpretation. ठीक है, कि at the time when he purchased this bond, so it was kind of it was in premium. Later on आपका it shifted in discount आपका. ठीक है, so 8 point है कहीं पे, हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका. increase from मतलब what happened,
इट इंक्रीज फ्रॉम 8, आपका जो करंट यील्ड है वो आपका उसका जो रिटर्न होगा वो बढ़ेगा कहां से 8.18 से आपका 9.47 आपका, ठीक है। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज द केस, आप ये आपने समझ लिया। करंट यील्ड फॉर श्योर आई कैन हैव अ बेट ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। either you will get this particular question in your AFM subject or in your IE and IFS for sure guys, 100%। और ऐसा भी होता है कि वो दोनों में पूछेगा, ठीक है, आपका AFM में भी, यहाँ पे भी, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आई कि आप सभी से आशा करता हूं कि आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे कमेंट्स में, ठीक है। चलो, each one of the following is the property of bond duration except him। so properties of bond duration, again very important question, ठीक है। so पहला आपका bond duration will be equal to its term maturity only in case of zero coupon bond, ठीक है। so what are zero coupon bonds? basically these are get issued by the government of India, ठीक है। they get issued on discount पे क्यों इशू होते हैं? जैसे let's say government of India, they come up with the bonds, I government of India promised to pay this, so face value was 1000, they get issued on discount, so discounted price was supposed at 700, ठीक है। assuming this bond was for 5 years, ठीक है, maturity है आपका 5 years का, ठीक है। so what government is saying, you pay us 700 rupees right now, we will pay you at the end of 5 year how much, आपका 1000 rupees, ठीक है। in this type of bonds the bond duration will be equal. Now what is duration and what is the difference between duration and आपका maturity, ठीक है। so maturity, basically maturity is like for what period borrower is raising that particular fund, कितने समय के लिए आपका, दिस इज द मेच्योरिटी, कि गवर्नमेंट ने आपका 5 साल के लिए, दे आर रेजिंग दैट पर्टिकुलर फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर फॉर 5 years, ठीक है। और आपका जितने भी समय के लिए बॉन्ड इश्यू किया गया, ड्यूरेशन इज लाइक फॉर व्हाट टाइम ड्यूरेशन एज अ इन्वेस्टर वी आर परचेजिंग दैट बॉन्ड और वी सेल दैट पर्टिकुलर, लेट्स से in a normal category, there is a bond issued by XYZ company for 10 years, आपने उसको secondary market में purchase किया and after some time you sell that particular one, that time duration, suppose that it was 2 years, so that 2 year is generally known as duration। that means what is the interpretation, ठीक है, duration can be less than equal to your maturity, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि like we purchase that bond at the time of NFO, ठीक है, जब उसको लॉन्च किया गया, and we hold till maturity, in that case duration and maturity will be equal। and even in case of zero coupon bond जहां पे periodical return नहीं है, because we do not have any sort of periodical returns, so government they are telling you कि आप 700 रुपए दो, हम आपको 1000 रुपए देंगे। so in this particular case also this is the first statement is 100% true, ठीक है। duration is less than the term of maturity, it can be, ठीक है, मतलब आप रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। मेच्योरिटी इज लेस देन ड्यूरेशन नेवर, ठीक है, बट हाँ ड्यूरेशन कैन बी लेस देन मेच्योरिटी, एज आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ 2 years, ठीक है। ड्यूरेशन इन YTM आर इनवर्सली रिलेटेड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। लार्जर द कूपन रेट स्मॉलर, ठीक है, ये आपका पॉइंट गलत है, ठीक है। सो they have inversely related, that means larger the coupon rate smaller the duration of that particular bond, ठीक है। चलो अब यहां से एक बार फिर से जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज पे योर अटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। अगेन 1 marks का क्वेश्चन यहां से बनने की हाई प्रोबेबिलिटीज आपकी हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। सो फर्स्ट आपका ड्यूरेशन इज लेस देन द टर्म ऑफ मेच्योरिटी, bond duration will be equal to term maturity in case of zero coupon bond, ठीक है। duration of a perpetual bond is equal to 1 plus r divided by r, ठीक है, where current yield is r is equal to current yield। अब now what is perpetual bond, ठीक है, bond with no maturity, ठीक है, bond without maturity, they are generally known as prep, इक्विटी की तरह आपका जैसे होता है ना, लाइक इक्विटीज के अंदर जब तक कंपनी है तब तक आपके शेयर्स, वैसे ही in case of perpetual bond also, they do not have any maturity, they are generally known as prep, ठीक है। so that is the one, the longer the coupon paying bonds term to maturity, the greater difference between term maturity and duration and YTM are inversely related, larger the coupon smaller the duration of bond, and increase in frequency of coupon payment
डिक्रीज द ड्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा पेमेंट हो रहा है वो अपनी मेच्योरिटी की तरफ पहुंच रहा है, वाइल अ डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड विल डिक्लाइन एज द इट अप्रोचेस टू दी मेच्योरिटी, ठीक है। तो ये मतलब कितने रह गए उसके आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट कम होगा, तो दैट मीन्स दैट इज अबाउट टू मेच्योर, एंड दिस इज द केस आपका, ठीक है। सो दिस इज अगेन very very important one, guys. Please make a note for this particular one. This is, you guys are definitely going to face one question based on these two theorems as well as duration, ठीक है, properties आपका, ठीक है। If the interest rate in market increase, the market price will decrease or decrease increase, vice versa, ठीक है, increase decrease, बिल्कुल ये आपका correct answer होगा, ठीक है, without any doubt, ठीक है। Next one, to be eligible for a primary dealer in India, a financial institution must meet a minimum net own funds requirement. What is the prescribed minimum net own funds for non-bank entities seeking a primary dealer license? So कितना होना चाहिए? 100 crore rupees, ठीक है। So 100 crore rupees आपका B will be right answer for this one, ठीक है। So net own funds requirement for non-bank primary dealers is 100 crore rupees as per the RBI regulation. This ensures that the entity has a sufficient financial strength to participate in government securities trading, ठीक है। Apart from that, there are certain guidelines जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। So eligibility conditions for primary dealers, ठीक है। So what are the major eligibility conditions for primary dealers? पहला, सब्सिडरी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो प्राइमरी डीलर्स आर मोस्टली लाइक, जैसे आपका बैंक है, सपोज दैट योर बैंक इज एसबीआई, सो दे हैव क्रिएटेड वन सब्सिडरी, ठीक है, that is generally working as a primary dealer in the market, or it can be all India financial institution like आपका एग्जाम एंड ऑल, वो भी हो सकते हैं, एनएसपी। सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स सेटअप इन इंडिया बाय एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, a company incorporated under Companies Act 1956 and fall under A and B, or it can be Companies Act 2013 as well, ठीक है। So the applicant for primary dealer should register as an NBFC at least 1 year prior to the submission of its application for primary dealer. The decision to authorize primary dealers is taken by the RBI based on the perception of market needs, suitability of the applicant and likely value addition to the system as well, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं गाइस, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a core function of primary dealers in Indian debt market? So which is not a function of primary dealers, ठीक है। So they generally help corporate or houses to raise the funds or to meet with the buyer seller things, you know, ठीक है। So underwriting government securities in the primary market, providing continuous liquidity in the secondary GSEC market, ठीक है। Managing the issuance of corporate bonds in primary market, no, this is not the core of this team. Acting as market makers to ensure stability in government securities, this is also true, okay? Statement C is incorrect, rest all the three statements are correct here. So primary dealers are mandated to underwrite government securities to ensure smooth issuance, provide liquidity in secondary market by acting as a actively trading in government securities, act as market makers, ensuring price stability and efficient price discovery, right? However, primary dealers not handle corporate bond issuance, which are managed by merchant bankers or investment bankers, ठीक है, not by the primary dealers, all right? तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं फंक्शंस, रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्राइमरी डीलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो commit participation as a principal in government of India's issue through bidding in auctions, provide underwriting services, offer firm buy sell bid ask quote for treasury bills and dated government securities, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है आपका, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उन्हीं के लिए आपका, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइम सेकेंडरी डेट मार्केट, ठीक है, that is the additional one, liquidity and all. Primary dealers can be either बैंक प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, आपका बैंक खुद से आपका प्राइमरी डीलर्स कर सकता है अपने सर्टिफिकेशन पे, और दे कैन हैव अ सब्सिडरी, ठीक है।
that is generally standalone. ठीक है, bank primary dealers, those were the department of the bank functions as primary dealer, where standalone are NBFCs that exclusively take up primary dealer business. Most of the primary dealers are started by scheduled commercial bank एंड आर रजिस्टर्ड एज एनबीएफसी. ठीक है, तो ये स्टैंड अलोन की तरह ही चलाते हैं और सारे जितने भी आपके बैंक हैं ये सब के आपके मिलेंगे. एट प्रेजेंट देर आर 7 स्टैंड अलोन आपका प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, एंड 14 बैंक्स प्राइमरी डीलर्स. ठीक है, सो ये जितने भी मोस्ट ऑफ आपका पब्लिक एंड सम प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑल्सो. सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस डेटा. चलो आगे बढ़ते हैं. Reserve Bank of India assess the performance of primary dealers based on multiple factors. Which of the following factor is least likely to impact the primary dealers evaluations? ठीक है, तो जो आपके प्राइमरी डीलर्स की परफॉर्मेंसेस है दैट इज गेट ट्रैक बाय द आरबीआई इटसेल्फ. ठीक है, अब इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका उस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से कोई लेना देना नहीं है? Their underwriters commitment and success rate in GSEC auction. True, it is. The volume and frequency of their secondary market transaction in GSEC. ठीक है, so this is also true. ठीक है, their level of involvement in retail equity. नहीं, retail equity का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, so this is wrong. Compliance with regulatory requirement and risk management. This is also true. ठीक है, so what will be your correct answer? C will be right answer for this particular one. All right. So underwriting commitment in success rate in government securities, market participation and liquidity provisions, regulatory compliance and risk management practices to ensure financial stability. So these are the core areas on which RBI they generally judge the performance of primary dealers. All right, next one. Okay, we missed the question, but this is a very important question. Okay? Developing standardized practice for fixed income. So the question is about the what are the objectives of FIMMDA. ठीक है, this is a very very important question. I don't know how I missed that particular. No worries. और भी और question हम लोग practice करेंगे. ठीक है, so basically these are the some major activities which are generally get performed by the FIMMDA. Fixed income, government and corporate bonds, money market instruments like these, and derivative market instrument. ठीक है, it does not regulate or issue GSEC government securities, which is the RBI role and all. ठीक है, तो अब पहले इसको पढ़ लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये आपका एग्जामिनेशंस के लिए, so you have to be very careful about this one. ठीक है, so again you can expect half marks to 1 marks question based on this particular one. ठीक है, so fixed income money market and derivative association of India, right? So FIMMDA is a self-regulatory organization, SRO, associated with the fixed income and derivative market in India. It is an association of commercial bank, financial institution and primary dealers, and a voluntary regulating institution for the bond, money market and derivative market. Okay, so these are the role, major primary responsibilities which get fulfilled by this particular organization. Okay, to function as a principal interface which with the regulators on various issues that impact the functioning of these market, undertake development activities such as introduction of benchmark rate and new derivative instrument, etc. Okay, to provide training and development support to dealers and support personnel in member institutions, to adopt and develop international standard practices and code of conduct in the our field, to devise standardization best market practices, function as an arbitrator for dispute, if any, between the member nations, member institutions, to develop standardized set of documentations, to assume any other relevant role facilitating smooth and orderly functioning of the said market, means आपका money market, bond market and derivative market. ठीक है, one question based on this particular one. ठीक है, so एक question आपको जरूर मिलेगा यहाँ से, so please make a note about this particular thing. ठीक है, चलो इस पे आप 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे. FIMMDA is responsible for publishing several benchmark rate
in the Indian financial market. Which of the following is not a benchmark rate determined by or published by FMMDA? ठीक है, तो क्या होगा आपका NSE मिबॉर, यस, ठीक है, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट इज गेट इशूड बाय FIMMDA, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स यील्ड इट इज ऑल्सो गेट इशूड बाय दिस, ठीक है, GSEC वैल्यूएशन इट इज ऑल्सो, अच्छा हाँ, तो आपका आंसर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, ठीक है, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट इट इज गेट डिसाइडेड बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है, जैसे पहले हमारा होता था ना बेस रेट, देन आपका बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, देन आपका बेस रेट को हमने नाम दिया आपका क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, ठीक है, सो MCLR इज गेट डिसाइडेड बाय द बैंक इटसेल्फ, ठीक है, कार लोन के लिए कितना होगा, स्पेसिफिक बैंक टू बैंक भी आपका कैटेगरी टू कैटेगरी जो वेरी करता है, ठीक है, सो FIMMDA सेट अप एंड पब्लिश Mumbai interbank offer rate, a key interbank lending rate, ठीक है, treasury bills yield curve, provide yield trend in the money market, GSEC valuation curves, ठीक है, so please do remember these one, ठीक है, individual MCLR is determined by individual bank as per RBI guidelines and is not set by this particular institution, very important guys. चलो अगला, how does FIMMDA contribute to risk management in the India's debt and derivative market, ठीक है, so if there is any dispute so we solve, तो functions अभी हमने पढ़े थे उससे बन जाएगा आसानी से, by imposing capital adequacy norms, no, it is done by RBI, ठीक है, by setting guidelines for mark to market valuation of fixed securities, yes, ठीक है, by regulating the issuance of corporate bond, no, by acting as a lender of last resort, ये बाकी सब RBI के काम है, ठीक है, B will be right answer for this particular one, ठीक है, so play a key role in risk management where valuation guidelines for debt securities to ensure fair pricing, standardized yield curve for government and corporate bonds, market conventions for derivative transaction to reduce counterparty risk आपका, ठीक है, so that is the one, ठीक है, next one आपका जो remaining थे three functions they get generally performed by RBI itself. Next one, what is the primary objective of RBI retail direct scheme? Again very now we are entering to a new or the next subtopic, ठीक है, तो बढ़िया से आप ध्यान से सुनिएगा इसको क्योंकि एक नई चीज आपको फिर से लर्न करने के लिए मिलेगी, ठीक है, सो रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो दिस इज द स्कीम जहां पे लाइक नाउ जैसे नाम से बताया ना रिटेल, एज अ रिटेल कस्टमर वी कैन डायरेक्टली like we can have one account with RBI, so जहां पे we can participate in buy sell of government securities, ठीक है, मतलब basically if government of India is coming with some security so we can directly place our bid in that particular one, so अब कुछ आपका ऑनलाइन में होता है and it is a direct account with the RBI, so basically what RBI did, वो जो आपके मीडिएटर्स आपके थे बैंक उनको यहाँ से साइड किया गया, ठीक है, टू एनेबल रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटी मार्केट, नहीं आपका इक्विटी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एक्सेस फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, हाँ इट कैन बी, ठीक है, टू प्रोवाइड रिटेल इन्वेस्टर विद एक्सेस ऑफ प्राइमरी मार्केट कॉर्पोरेट इशुएंस, नो, to allow individual to trade and derivative note, ठीक है, it is something it is only related to government securities, ठीक है, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है, so retail direct scheme was launched to provide individual investor easy and direct access to government of India treasury bills, sovereign gold bonds, state development loans and government of India's dated securities, okay, so इनमें आपका डायरेक्टली परचेज करने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर वन, ऑलराइट, नेक्स्ट वन, so retail direct scheme RDS, ठीक है, so in order to deepen the government securities market and enable retail investor to participate in the process of nation building by giving them access to government securities market, RBI launched retail direct scheme on 12th of November 2021. Please do remember this date also, ठीक है, so what are the silent feature, securities eligible government of India treasury bills, ठीक है, टेबल्स मनी मार्केट में हमने जो पढ़े थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स आपका, ठीक है, सोवेरियन बॉन्ड्स आपका यानी गोल्ड बॉन्ड्स जो आपका सीरीज चला था, ठीक है, एंड आपका स्टेट डेवलपमेंट लोन विच जनरली गेट इशूड बाय दी और ऑन द फेस वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्कोप ऑफ द स्कीम, RBI रिटेल डायरेक्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम विच प्रोवाइड द फॉलोइंग facilities to retail investors in government securities market through an online portal. So open and maintain retail direct
गिल्ट अकाउंट, ठीक है। सो दिस अकाउंट इज जनरली नोन एज रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू प्राइमरी issuance of government securities, access to NDS OM, that is open market operations, and you can have you place your bid or this, ठीक है। So please do remember these particular one, ठीक है। Eligibility of investors: retail investors defined under the scheme can register under scheme and maintain retail direct GSEC accounts if they have following. पहला rupee saving account, permanent account number, PAN number, ठीक है। Officially valid document for KYC, there are 6 documents including Aadhaar and PAN, ठीक है। ये सब आपका valid ID आपका, ठीक है। Again which comes under this registered mobile number. Non-resident retail investor eligible to invest in government securities under FEMA Act 1999. The retail direct government securities account can open singly or jointly with another retail investors who meet the eligibility criteria. Again, this is again very important. Okay, so please do take care about these particular statements. Registration आपका investor can register online portal by filing the online form OTP received, ठीक है, on the registered mobile number, ठीक है। Instruction issued under RBI KYC direction 2016 updated from the time to time basis and all, ठीक है। So upon the successful registration, retail direct gilt account will be open, and detail of accessing the online portal will be conveyed through the SMS or email. Retail direct gilt account shall be available for primary market participation as well as secondary market transaction on NDS OM, ठीक है। सो प्लीज आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको मिलने वाला है, ध्यान रखें, ठीक है। मार्क्स बोलते ही आपके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए मैं बार बार ये यूज करता हूँ, ठीक है। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट अंडर द रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। आप बन जाएगा सबसे, ठीक है। सो इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट with no account opening and maintenance charge, बिल्कुल 100% true. It allow retail investor to buy and sell government securities directly from RBI. It permit margin trading for leverage investment in government securities, ठीक है। No, this is wrong. Margin trading is not allowed over there, ठीक है। आपका investor can participate in both primary and secondary market, this is also true, ठीक है। So आपका C गलत है, तो C will be right answer for this particular one, ठीक है। So free of cost, direct access to, with RBI, participate in both primary and secondary. Margin trading and leverage are not allowed, derivatives जो होती है, ठीक है। As the आपका government securities are low risk instrument meant for longer term investment. All right, चलो आगे बढ़ते हैं। Under the RBI retail direct scheme, how can an individual investor purchase government securities, ठीक है। तो क्या होगा, only through the commercial banks, no. By applying through a SEBI registered, no. By opening retail direct gilt account with RBI and bidding in auction on NDS OM, 100% true। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो एक्सेस होगा। नेक्स्ट वन, what is the main objective of developing the corporate bonds in India, ठीक है। सो ये आपका लास्ट सब टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट का, देन वी विल प्रैक्टिस अ मिक्स क्वेश्चन आल्सो, ठीक है। So what is the main objective of developing corporate bonds? So corporate bonds का objective क्या है? So basically the issuer is corporate houses. They can also raise funds for longer period, right? So to provide an alternate source of funding and reduce dependence on banking system, true. To increase short term नहीं आपका to ensure only large corporate नहीं, to eliminate the role of bank, no. तो क्या होगा आपका आंसर? A only will be right answer for this one, ठीक है। So corporate bond market aim to offer long term funding alternates to companies, reducing reliance on traditional bank loans. It help in broadening the investor base, improving liquidity and ensuring better risk sharing in financial system. All right, चलो तो यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। So what are corporate bonds, ठीक है। So corporate debt market in India is relatively on a early stage, ठीक है। In term of the efficient price discovery mechanism as well as market participations, ठीक है। सो होता क्या, ये हम लोग समझते हैं बेसिकली लाइक जैसे आपका गिल्टेज है जहां पे गवर्नमेंट पैसा रेज करी है, इन केस ऑफ आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड, सो कॉर्पोरेट हाउसेस दे आर रेजिंग मनी थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है।
Objective of development of this particular one is to diffuse stress on bank by diversifying credit risk across the various investors, to supply long-term investment product for long-term investors, reduce funding cost for corporate houses, and to ensure capital allocated more efficiently among the various enterprise. All right. So these are the one जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. चलो अगला आपका next one is based on types of bonds. ठीक है. Which of the following bond carries the highest risk during bankruptcy or liquidation? So we have discussed these type of questions in our AFM subject as well. ठीक है. So what will be your correct answer? Subordinated bonds. ठीक है. When it comes to the liquidation, ठीक है. So कोई कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो सबसे पहले जो आपका सिक्योर डेट है वो आपका पे ऑफ होते हैं, उसके बाद अनसिक्योर डेट. ठीक है. देन उसके बाद आपका जो प्रीफरेंस शेयर्स, लास्ट में आपका इक्विटी शेयर्स. बट इनमें से अगर हम देखते हैं जैसे सिक्योर्ड है आपका सीनियर डेट विच इज सिक्योर डेट, इन्फ्लेशन लिंक. बट ये आपका सबऑर्डिनेटेड का मतलब होता है सेकेंडरी. दिस इज विच गेट सेकेंडरी प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ liquidation. So that's why they are risky and they have higher return compared to your senior debt or other instrument. All right. Next one. A government issue a bond that has no maturity date. Bonds without maturity. PrEP. Perpetual bonds. ठीक है. So आपका A will be correct answer. ठीक है. मैंने अभी आपको कुछ देर पहले इसका आइडिया भी दिया था. ठीक है. Bond that give issuer the right to repay bond before the maturity. So it is known as callable bonds. ठीक है. So we have like optionality in bond. Very important topic. ठीक है. So bond options. ठीक है. Options हमने पढ़े हैं आपका. ठीक है. So same in case of bond also we have two option. One is call option. Another one is put option. ठीक है. Callable bonds and putable bonds. ठीक है. Callable bonds which generally give right to borrowers or the companies. ठीक है. आपका मैं इसको लिख देता हूँ कंपनीज. ठीक है. एंड पुटेबल बॉन्ड्स विच जनरली गिव राइट टू इन्वेस्टर्स. ठीक है. राइट टू इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स आपका जिन्होंने उसमें पैसा लगाया है, लेंडर्स आपके. ठीक है. राइट क्या है? लेट्स से इफ देयर इज अ कंपनी हु कम अप विद अ बॉन्ड्स. ठीक है. व्हिच हुज मैच्योरिटी इज 15 इयर्स. ठीक है. अब कॉलेबल बॉन्ड्स में क्या होगा? राइट कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन इफ इट इज अ कॉलेबल बॉन्ड्स तो कंपनी कैन रिडीम इट. ठीक है. दे कैन बाय बैक दोस पर्टिकुलर बॉन्ड्स बाय रिटर्निंग द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स. In case of putable bonds, this right belongs to investors. ठीक है. After a certain time, they can ask the company to return their money. So this is the case. Give right to issuer. Right to issuer means आपका right to issuer means issuer कौन है? आपका company, borrowers. ठीक है. So that is generally known as callable bonds. Understood? अगला. A putable bond provide the investor with an option to redeem the bond before maturity. ठीक है. कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू. हाँ. सो क्या होगा आपका? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर. रिडीम करा सकते हैं आप. ठीक है. बाय बैक मतलब जो टाइम मेच्योरिटी उससे पहले उसको आपका यू कैन फोर्स टू द आपका कंपनी टू आस्क, यू कैन जनरली आस्क मनी बैक. ठीक है. फ्रॉम द कंपनी. ठीक है. The value of bond holders they get at maturity, it is known as redemption value. ठीक है. So redemption value is basically the money which we generally get at the end. ठीक है. तो ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे फेस वैल्यू विच इज स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ बॉन्ड. जैसे मैंने आपको बताया 1000 रुपीज. कूपन रेट इज इंटरेस्ट रेट. ठीक है. मैच्योरिटी इज बेसिकली फॉर हाउ लॉन्ग दैट बोरोवर इज रेजिंग फंड. ठीक है. रिडम्पशन वैल्यू आपका. ठीक है. द मनी वी गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी. इंटरेस्ट रेट आपका दिस. मार्केट वैल्यू आपका. फेस वैल्यू विच आपका जितने पे उसने बोरो किया. मार्केट वैल्यू नाउ डेज बॉन्ड गेट ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट सो इट कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन द फेस वैल्यू. ठीक है. डे काउंट कन्वेंशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. डे काउंट कन्वेंशन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. प्लीज ध्यान रखिएगा इस पे. ठीक है. सो वी हैव लाइक मोस्टली वी यूज एक्चुअल 365 डे काउंट कन्वेंशन. डे काउंट कन्वेंशन इज बेसिकली जैसे मैंने आपको कल भी बताया था आई गेस. ठीक है. कि जहां पे क्या होता है ना कि लाइक लेट्स से इफ अ कंपनी इशूड अ बॉन्ड तो अगर वो प्रॉमिस जो करे कि लाइक द इंटरेस्ट लेट्स से द कूपन रेट इज 10%. सो हाउ वी विल कैलकुलेट दैट कूपन. ठीक है. आपका जैसे एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, डेली बेसिस. ठीक है. इंडिया में आपका डेली बेसिस तक भी हो सकता है. ठीक है. तो जो अगर हम 100 डेज का कैलकुलेट करेंगे तो किस बेसिस पे? अगर वो एक्चुअल 365 मीन्स in a actual days of actual number of days we hold that particular bond in, and
इन अ ईयर वी आर अज्यूमिंग 365 डेज इवन इफ इट इज लीप ईयर, ठीक है। अगर वो 360 है दैट मीन्स इन अ मंथ देर आर 30 डेज, भले ही 31 हो या 21 हो, उससे कोई हमें मतलब नहीं है। 28 दूसरा आपका इन ईयर वी आर अज्यूमिंग 360 डेज, ठीक है। इस तरीके से आपका जो देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सबसे ज्यादा यूज होता है आपका ये दो, एक्चुअल एक्चुअल या एक्चुअल 365, बट मोस्टली यू विल सी दिस वेयर इवन द केस ऑफ लीप ईयर्स द डे दिस विल बी दिस, ठीक है। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है। हाँ, अब डे काउंट कन्वेंशन पे क्वेश्चन मैंने आज रखा है, ठीक है। अ कॉर्पोरेट बॉन्ड पेज इंटरेस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल एक्चुअल पे है, मतलब जितने दिन है साल में और उतने हुए हैं, ठीक है। काउंट कन्वेंशन, इफ द बॉन्ड होल्डर रिसीव इंटरेस्ट फॉर द बॉन्ड पीरियड फ्रॉम जुलाई 1st टू December 31st, ठीक है, हाउ मैनी डेज विल बी कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, निकल जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जुलाई कितने होते हैं, जुलाई में होते हैं आपके 31 डेज, ठीक है। अगस्त में कितने होते हैं आपका 31 डेज, ठीक है। सितंबर आपका 30 डेज, ठीक है। अक्टूबर आपका 31 डेज, ठीक है। नवंबर में कितने होते हैं 30 या 31, ठीक है। सो 30 डेज सॉरी, ठीक है। एंड आपका दिसंबर में आपका 31, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू टोटल दिस वन, जितना भी इसका टोटल होगा वो आपका कितने मंथ हैं, 1 2 3 4 5 6 184, अच्छा 184 है ही नहीं, तो मैंने किसी में डेज गलत लिखे हैं मतलब, ठीक है। तो आपका किस में मंथ क्या होता है, 183 होगा फिर तो, ठीक है। सो 30 1 2 3 4 5 6 180, ठीक है। 1 2 3 4 एग्जैक्ट नंबर्स आपका, ठीक है। अच्छा डेट क्या था हमारा, अच्छा जुलाई टू दिस है, तो इसमें हम लोग मतलब 1 जुलाई टू इट शुड बी 184 और समथिंग, ठीक है। 184 आपका होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट आई डिड द कैलकुलेशन, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन ही गलत बना दिया क्या, तो यहाँ से यहाँ लेके जितने भी डेज होते हैं, ठीक, आई डिड दैट कैलकुलेशन। मैं मतलब अब मुझे अभी थोड़ा डाउटफुल हो रहा है, बट आई चेक दिस वन, आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि वहां से वहां तक के जितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज हैं उनके बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड विच रैंक आफ्टर अदर डेट, तो इसको हम सेकेंडरी या जिसको हम सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। What are the feature of bonds? ठीक है, so bond are debt instrument issued by debtors for raising funds. True. Bond are issued for a specific period, maturity and carry fixed interest coupon. Bond are transferable and traded in secondary market. True. ठीक है, तो सारे ही करेक्ट हैं, ठीक है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। When a bond promise to make payment at the fixed rate of return, it is popularly known as, it is called YTM आपका, ठीक है, yield to maturity जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। And how we calculate yield to maturity, this is the one, ठीक है। AFM में हेल्प करेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। Dash are issued with no interest payment during the life, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज they get issued on discount, तो they are generally known as जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे शेयर करता है मैंने आपको 2 3 बार बता दिया वैसे, ठीक है। सो इफ द फेस वैल्यू इज सपोज दैट 1000, दे इशूड इट एट डिस्काउंट, ठीक है, लेट्स से 560 रुपीज एंड द मेच्योरिटी वाज सपोज दैट 10 ईयर्स, ठीक है। तो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, वो बोले आप हमें इतना पैसा अभी दो 560 रुपीज फॉर 10 ईयर्स एंड वी विल रिटर्न यू 1000, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसमें रिटर्न नहीं है, रिटर्न इसमें भी है, but there is no specific rate of interest is mentioned, ठीक है। Usually in other cases we get that coupon on half annually basis credit होता रहता है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी, ठीक है। A bond with no maturity, it is called perpetual bonds, ठीक है। Yes, option D will be right answer. So this is it. All right, guys. तो ये हमारा सेशन today. Actually, I was not feeling that good, but I do not want to miss any day. वी हैव अ टारगेट 15th मार्च आपका, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आपका आई होप यू गेट एवरीथिंग क्लियरली, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू डिडंट गेट एनी पॉइंट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड आई हेल्प यू आउट विद दैट पर्टिकुलर वन। सो आने वाले समय में मैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आपका इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है दोस्तों। सो दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, कहाँ गया, अभी है नहीं इसमें, ठीक है। सो आई मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड like if you need any help from my side, so you can connect me through that particular one, as well as you can access to our application also, तो वहाँ पे भी जाके आप चीज़ों को देख सकते हैं। And if you get any confusion, if you need any help for this particular examination, so please let me know. All right, so I hope you get these things clearly. अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है।
सो दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते गाइस, कल फिर से आपका मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक, यूनिट नंबर 33, एंड वी विल डिकोड दैट पर्टिकुलर वन विच इज ऑल अराउंड द फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। So we will also discuss that particular one with the help of number of MCQs. All right. So this is it. Bye bye. Take care all. Have a nice. Thank you.